Hello guys, I am Bhupinder Singh, an English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Today I am going to teach you the 8th lesson of your supplementary reader book, Memories of Childhood. Actually, in this chapter, there are two stories: The Cutting of My Long Hair by Jit Kalasa, and second one is We Too Are Human Beings by Bama. So there are two writers of this chapter, Jit Kalasa and Bama. We shall discuss first story in first video and second story in second video. Actually, this unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century. The second is by a contemporary Tamil Dalit writer. Gertrude Simmons Bonin, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. As a writer, she adopted the pen name Jit Kalasa and in 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian school. Her works criticized dogma and her life as a Native American woman was dedicated against the evils of prison. And about the second one, whose name is Bama, we shall discuss in next video. So let's start the first story. The first day in the land of apples was a bitter cold one. मेरे सेबों की धरती पर पहला दिन प्रथम दिन बहुत ज़्यादा असुहाना था. फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर, क्योंकि बर्फ़ से अभी भी ज़मीन को ढक रखा था और वृक्ष पत्तों से विहीन हो चुके थे, साफ हो चुके थे. अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. नाश्ते के लिए लंबी घंटी बजी और इसकी तेज धात्विक ध्वनि ऊपर घंटाघर से होती हुई, बेलफ्राई घंटाघर से होती हुई हमारे संवेदनशील कानों में आ रही थी. The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. और नंगे फर्शों पर जूतों की खड़खड़ाहट हमें शांति नहीं दे रही थी. The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. वे कठोर ध्वनियों की लगातार टकराहट के शब्द, अनजान बोलियों की बुदबुदाहट से पैदा होने वाली ध्वनियाँ मिलकर एक बेडलम मीन्स पागलखाना बना रही थी, जिसमें मैं बुरी तरह से बंधी हुई थी. एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, ऑल वॉज यूजलेस. यद्यपि मेरी आत्मा अपनी खोई हुई स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, किंतु ये सब किसी काम का न था. A pale faced woman with white hair came up after us. एक पीले चेहरे और सफ़ेद बालों वाली महिला हमारे पास आई. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. हमें एक लड़कियों की पंक्ति में भेज दिया गया था जो भोजन कक्ष की तरफ जा रही थी. These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. ये भारतीय लड़कियां थी सख्त जूतों और शरीर से चिपके हुए कपड़ों में, वस्त्रों में. द स्मॉल गर्ल्स वॉर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर. छोटी लड़कियों
जो छोटी लड़कियां थी बाजू वाले लबादे पहने हुए थे और उनके बाल सख्त थे, बहुत कठोर थे. As I walked noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. जब मैं शांति से बिना आवाज़ किए मेरे नरम जूतों मोकेजिन्स में नरम जूतों के साथ चली, मैंने फर्श में अपने आप को धंसते हुए महसूस किया क्योंकि मेरा कंबल मेरे कंधों से उतार दिया गया था. I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes. मैंने सख्ती से भारतीय लड़कियों की तरफ देखा जो इस बात पर ध्यान नहीं देती हुई प्रतीत हो रही थी कि वे मुझसे ज़्यादा इमोडेस्टली मतलब अशिष्ट कपड़ों में थी, अशिष्ट परिधानों में थी, अपने शरीर पर कसे हुए कपड़ों में. While we marched in, the boys entered at an opposite door. जब हम अंदर की ओर गए, लड़कों ने विपरीत दरवाजे से प्रवेश किया. I watched for the 3 young braves who came in our party. मैंने 3 युवा बहादुरों की तरफ देखा जो हमारे पार्टी में हमारे दल में आए थे. I spied them in the rear ranks, looking as uncomfortable as I felt. मैंने उन्हें पिछली पंक्ति में ढूंढा, वे उतने ही असहज लग रहे थे जितने कि मैं. A small bell was tapped, and each of the pupils drew a chair from under the table. एक छोटी घंटी बची और प्रत्येक विद्यार्थी ने मेज के नीचे से एक कुर्सी बाहर निकाली. Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. ये अनुमान लगाते हुए कि इसका अर्थ था कि ये बैठने के लिए थी, मैंने अपनी कुर्सी बाहर खींची और एकदम से उसकी एक तरफ से उस पर बैठ गई. But when I turned my head, किंतु जब मैंने अपना सिर घुमाया, I saw that I was the only one seated. तो मैंने देखा केवल मैं ही अकेली थी जो बैठी हुई थी. And all the rest at a table remained standing. और हमारी मेज पर बाकी सारे बच्चे जो थे वो बच्चे खड़े हुए थे. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. जैसे ही मैं उठने को हुई, शर्म से ये देखती हुई कि कुर्सियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना था, एक दूसरी घंटी बज उठी. All were seated at last, and I had to crawl back into my chair again. अंत में सभी बैठकर मुझे वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाना पड़ा. I heard a man's voice at one end of the hall, and I looked around to see him. मैंने एक आदमी की आवाज़ हॉल के किनारे पर सुनी और मैंने उसे देखने के लिए चारों तरफ सिर घुमाया. बट ऑल द अदर hung their heads over their plates. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. किंतु सभी ने अपनी प्लेटों पर सिर झुकाया हुआ था. जैसे ही मैंने मेज़ों की लंबी सीरीज़ पर लंबी श्रृंखला पर नज़र डाली, मैंने देखा कि पीले चेहरे वाली महिला मुझे ही देख रही थी. उसने मेरे ऊपर ही आंखें जमाई हुई थी. Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. एकदम से मैंने अपनी आंखें नीचे झुका ली, ये आश्चर्य करते हुए कि मैं इस विचित्र महिला के द्वारा इतनी उत्सुकता से क्यों दिखी जा रही हूँ. The man ceased his muttering. उस आदमी ने अपना बड़बड़ाना बंद कर दिया. And then a third bell was tapped. और तब एक तीसरी घंटी बजी. Every one picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. प्रत्येक ने अपना चक्कू और कांटा उठाया और खाना आरंभ कर दिया. मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि इसके अलावा उस समय मैं कुछ भी अधिक करने से डर रही थी, यानी कुछ और
नहीं कर पाती तो रोने लग गई। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। किंतु इस प्रकार के नियम से भोजन करना प्रथम दिन की सबसे कठोर परीक्षा नहीं थी। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडेविन गिव मी अ टेरिबल वार्निंग। देर सुबह मेरी मित्र जुडेविन ने मुझे एक भयानक चेतावनी दी। जुडेविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। जुडेविन अंग्रेजी के कुछ शब्दों को जानती थी। एंड शी हैड ओवरहेड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग अ लॉन्ग हैवी हेयर। और उसने पीले चेहरे वाली महिला को हमारे लंबे घने बालों को काटने की बात करते हुए सुन लिया था। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि केवल अकुशल योद्धा जो शत्रु द्वारा बंदी बना लिए जाते थे, उनके बाल शत्रु के द्वारा मूंड दिए जाते थे। Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. हमारे लोगों में छोटे बाल मॉर्नर्स विलाप करने वाले लोगों के होते थे और मुंडे हुए सिर कायरों के होते थे। We discussed our fate some moments, and when Judevin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. हमने अपने भाग्य के बारे में थोड़ी देर विचार विमर्श किया, और जब जुडेविन ने कहा हमें समर्पण करना होगा क्योंकि वे ताकतवर हैं, कहते आई रिबेल्ड, मैंने इसका विद्रोह किया। नो, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर। नहीं, मैं समर्पण नहीं करूँगी, मैं पहले संघर्ष करूँगी, मैंने उत्तर दिया। आई वॉच माई चांस, मैंने अपना मौका देखा। एंड वैन नो वन नोटिस्ड, और जब किसी ने ध्यान न दिया, आई डिसअपियर्ड, मैं वहाँ से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़, मैं सीढ़ियों पर उतनी चुपचाप चली जितना कि मेरे शोर करने वाले जूतों से चला गया। माई मुकेजिन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़, फिर मेरे नरम जूते इन जूतों से बदल दिए गए थे। अलोंग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, मैं हॉल से बिना किसी के जाने कि मैं कहाँ जा रही थी गुजर गई। Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. मैंने एक खुले दरवाजे के अंदर की ओर धकेला, 3 सफ़ेद बिस्तरों वाला एक बड़ा कमरा वहाँ पर था। यानी फिर मुझे एक कमरा मिला जिसमें 3 सफ़ेद बिस्तर लगे हुए थे। The windows were covered with dark green curtains which made the room very dim. खिड़कियाँ गहरे हरे पर्दों से ढकी हुई थी जो कि कमरे को बहुत धुंधला बना रहे। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, शुक्र था कि वहाँ कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवार्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, मैंने अपने कदमों को दरवाजे से सबसे दूर वाले कोने की ओर निर्देशित किया। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, मैंने हाथों और घुटनों के बल मैं एक बिस्तर के नीचे रेंग गई और अपने आप को एक अंधेरे कोने में लगा लिया, यानी कि छुपा लिया। हडल मीन्स टू हाइड, छुपाना, एक अंधेरे कोने में छुपा लिया। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीयर्ड आउट, शडरिंग विथ फियर वेरेवर आई हर्ड फुटस्टेप्स नियर बाय, जब भी मुझे नज़दीक कोई कदमों की आवाज़ सुनाई देती, मैं अपने छिपने के स्थान से भय से कांपती हुई बाहर झांकती। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, यद्यपि हॉल में तेज आवाज़ें मेरा नाम पुकार रही थी। एंड आई न्यू दैट इवन जुडेविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, और मैं जानती थी कि जुडेविन मुझे ढूंढ रही थी, मैंने उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और तब कदमों की आहट तेज हो गई और आवाज़ें भी अधिक उत्तेजित हो उठी। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, आवाज़ें पास और पास आती जा रही थी।
वीमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, महिलाएं और लड़कियां कमरे में प्रवेश कर गई, नहीं कमरे में प्रवेश कर गई, घुस गई. आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोज डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स. मैंने अपनी सांस को रोक लिया और उन्हें अलमारियों का दरवाज़ा खोलते और बड़े संदूकों के पीछे झांकते हुए देखा. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. किसी ने पर्दे उठा दिए और कमरा एक आकस्मिक प्रकाश से भर उठा, यानी अचानक से कमरे में रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया. What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. उन्होंने किस कारण से बिस्तर के नीचे झुककर देखा, मैं नहीं जानती. I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. मुझे अपना बाहर खींचकर निकालना याद है, यद्यपि मैंने लात मारकर वह नोच कर यानी आक्रामकता से खरोंच कर इसका विरोध किया, किंतु मेरे इतना करने के बावजूद मुझे सीढ़ियों से नीचे लाया गया और एक कुर्सी से सख्ती से बांध दिया गया. I cried aloud. मैं बहुत ज़ोर से चीखी. Shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. सारे समय अपने सिर को हिलाती रही जब तक कि मैंने अपने गर्दन के पीछे कैंची की ठंडी ब्लेडों को महसूस न किया. And heard them gnaw off one of my thick braids. और मेरे एक घने जूड़े को कटते हुए यानी कुतरते हुए नहीं सुना. Then I lost my spirit. तब मैंने अपनी आत्मा को खो दिया. Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. जिस दिन से मैं अपनी माता के पास से ले जाई गई थी, मैंने सबसे अधिक अपमान को सहा. People had stared at me. लोग मुझे घूर रहे थे, लोगों ने मुझे घूर कर देखा. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. मुझे हवा में एक लकड़ी की कठपुतली की तरह उछाल दिया गया था. And now my long hair was shingled like a coward. और अब मेरे लंबे बालों को एक कार की तरह मूंद दिया गया था. In my anguish I mourned for my mother. अपने दुख में मैं अपनी माता के लिए रोई. But no one came to comfort me. किंतु कोई भी मुझे कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए, सुकून देने के लिए नहीं आया. Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do. कोई भी एक आत्मा, कोई भी एक प्राणी, कोई भी एक व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा जैसा कि मेरी माता किया करती थी. For now I was only one of many little animals driven by a herder. इसलिए अब मैं केवल एक हर्डर मीन्स गडरिया, एक गडरिया के द्वारा हाँके जाने वाले पशुओं में से एक थी. So guys, it was your first story, The Cutting of My Long Hair, written by Ajit Kailasan. I hope you will get understand. And second story we shall discuss in the next video. Till then, be happy. God bless you. Thank you. And have a great day.